कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवानों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। दो भाइयों का ताल्लुक फालिया के नवाही गांव मसीत वाली से है। लवाहिकीन ने हामिद शब्बीर के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी, जबकि हामिद का भाई अबरार शब्बीर ताहाल लापता है। अहले खाना के मुताबिक दोनों भाइयों का आखिरी राब्ता 2 जनवरी को हुआ था। कामोकी के वकास और हारून में जाँ बहक होने वालों में शामिल है वजीराबाद का नौजवान शहजाद भट्ट। कश्ती हादसे में जिंदगी की बासी हार गया। मुतवफ़ी हामिद शब्बीर, वकास और शहजाद भट्ट के वरसा का कहना है कि उनके बच्चों पर जुल्म किया गया। बास को कत्ल करके समंदर में फेंक दिया गया। शहजाद को स्पेन पहुंचाने के लिए 3 एजेंट्स ने 45 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें आमिर, हाफिज उस्मान और राना लियाकत शामिल है। आमिर का ताल्लुक वजीराबाद, राना लियाकत का गुजरांवाला से है। शहजाद भट्ट को पहले मोरितानिया बाय एयर पहुंचाया गया और फिर कश्ती के जरिए स्पेन रवाना किया गया था। कश्ती हादसे में गुजरात दरिया खटाना के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ की भी शनाख्त हो गई। मोहम्मद यूसुफ के भाई और दोस्तों ने मीडिया को कहानी बता दी। कहते हैं इंसानी स्मगलर से स्पेन के लिए बाय एयर 50 लाख रुपए में बात हुई। 27 लाख रुपए दिए। एजेंट्स ने सब्ज बाग दिखाकर जाल में फंसा लिया और उसकी जिंदगी की जमा पूंजी हथिया ली। एजेंट यूसुफ को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए थे। ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ 2000 ਯੂਰੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਦਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਓ, 8000 ਯੂਰੋ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਦੱਸਰ ਫਤਿਹ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੁਦੱਸਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫਤਾਬ ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਸੇਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। स्पेन में कश्ती को हादसा कैसे पेश आया, जिंदा बचने वाले नौजवान ने हकीकत बता दी। नौजवान का कहना था कि समंदर में तारकीन वतन की कश्ती रास्ता भूल गई थी। तेल खत्म होने पर कश्ती समंदर में 6 दिन तक रुकी रही। भूख और समंदर का पानी पीने से कश्ती पर मौजूद अफराद की अमवात हुई है। भूख से तंग तारकीन वतन की कश्ती पर मौजूद एजेंट से लड़ाई हुई। एजेंट्स ने तारकीन वतन को मारने के बाद लाशें समंदर में फेंक दी। एजेंट्स के पास रास्ता तलाश करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। एजेंट्स के पास सिर्फ कैंपस मौजूद था, जिसकी मदद से वो रास्ता तलाश करते थे। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਧੁੰਮਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4-5 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੀ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੋਖਾ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈਲਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪੇਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਸ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਸ। 5-6 ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਹੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 3.5 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਰਾ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਆਹੋ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ 2, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ।
कमर जमान कायरा ने कहा है कश्ती हादसा बड़ा अलमिया है, जानों के ज़िया पर दुख है, जहां बाग होने वाले अफराद की डेड बॉडीज लाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करूंगा, DG FIA और सफ़ीर से भी बात कर रहा हूं। गुजरात में कश्ती हादसे में जाबहक नौजवान के वरसा से इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा, हमें खुद गलत रास्तों की बजाय कानूनी रास्ते से बच्चों को बाहर भिजवाना चाहिए। मासूम बेज़हनों को, मासूम बच्चों को एक्सप्लॉइट करके ढेरों पैसे लेके और फिर उनको इस तरह दरिंदों के हवाले कर देने वाले लोग वही इनके कातिल हैं। उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पे इनकी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने वज़ीर आज़म साहब से मिलकर भी अब भी यही उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मामले में मैं DG FIA से भी बात करूँगा, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस मामले को जड़ से उखाड़ने के लिए सख्त तरीन कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब की इस मामले में बड़ी ज़ोरदार इनका ख्याल है कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनको पकड़े। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के हुक्काम को मराकश कश्ती हादसे के मुतासरीन की फौरी और मौसर मुआवनत करने का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ये हिदायत अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए जारी की हैं। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा और सेक्रेटरी दाखिला में ने भी शिरकत की है, जबकि मराकश कश्ती हादसे से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की 4 रुकनी हुकूमती टीम मराकश रवाना हो गई है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्क भी टीम में शामिल हैं। दफ्तर ख़ारजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश गया है। हुकूमती तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी, पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती मराकश में हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जाँ बहक हुए थे। 36 अफराद को बचा लिया गया था। गुजरावाला FIA ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनामे ज़माना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को भिम्बर आज़ाद कश्मीर से छापा मार कर पकड़ा गया। कश्ती हादसे के बाद गुजरावाला और गुजरात सर्कल में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के गैंग का अहम एजेंट था। मुतासर शख्स एहसन अली से 45 लाख रुपए लेकर उसे यूरोप भेजने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने एहसन अली को लीबिया में सेफ हाउसेस में रखा और बाद में ज़बरदस्ती कश्ती के जरिए यूनान रवाना किया, जहां हादसे में एहसन अली की मौत हो गई। कश्ती हादसे के बाद गुजरावाला और गुजरात सर्कल में 3 मुकदमा दर्ज हो गए। गुजरावाला में खातून की मुद्दत में 2 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात में इंसानी स्मगलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। FIA ने कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स की मुबैना सहूलतकार मां को भी गिरफ्तार कर लिया है।